Hello students, today we will start the topic auxiliary or auxiliaries. Auxiliaries are the helping verb when we use in the tense or in passive voice or in changing the mood. So these are auxiliaries. Auxiliary or auxiliaries are those helping verbs which help other verbs to form the tense, mood, or voice. So it is the helping verb. This is the one thing, and it helps other verbs to form the tense. Like we use is/am/are with first form of the verb plus ing. Then this is the mood. Mood is the modal auxiliary or voice. When we change active voice into passive voice, we need helping verb. So these are known as auxiliaries which we use as a helping verb. Now, kind of auxiliaries. They are of two types, primary auxiliary and modal auxiliaries. So, auxiliaries are of two types, primary and modal auxiliaries. Let us discuss primary auxiliaries. They are those helping verbs which help other verbs to form the tense, negative, interrogative और voice. तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं दे आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स, ये वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विच हेल्प अदर वर्ब्स, जो दूसरी वर्ब्स हमारी मेन वर्ब्स होती हैं टू फॉर्म दी टेंस, जिससे कि टेंस बनता है. अगर हम is/am/are के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing लगा देते हैं तो वो कौन सा टेंस बन जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है. अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बगैर हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हैं. हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेगेटिव आता है, नॉट आता है. तो हेल्पिंग वर्ब हमें नेगेटिव में भी यूज करते हैं. और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनाने में हेल्पफुल है. और वॉइस तो जब भी हम चेंज करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. They are now what are primary auxiliaries? So primary auxiliaries are be की form of the be is, am, are, was, were, being, being. This is the be form of the be. Now have, has, have, had, having. This is the form of have. And do, does, did, done. So all these helping verbs are primary auxiliaries. So this is the be form, this is the have form, this is the do form. So all these primary auxiliaries form the tense, they form the negative sentence, they form the interrogative sentence, and is helpful in changing the active voice into passive voice. Now the second auxiliary is modal auxiliaries. They are those helping verbs which help other verbs to express ability, possibility, threat, warning, purpose, etc. So all these to express the ability, possibility, threat, warning, purpose, all these are used with the helping verb, which are modal helping verbs. Now, what are the modal auxiliary verbs? They are shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, etc. So all these are modal auxiliaries. Now let us have the topic difference between a modal auxiliary and a primary auxiliary. This is very important thing here.
A model auxiliary is not limited by the number or person of the subject. ये मॉडल ऑक्सिलरी जो है सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट ए प्राइमरी ऑक्सिलरी डू सो, लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी पर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको हिंदी में अगर जो थोड़ा एक्सप्लेन करें तो मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु प्राइमरी ऑक्सिलरी पर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू इट, आई इज द फर्स्ट पर्सन, कैन इज द मॉडल ऑक्सिलरी, and do is the first form of the verb it. It is the object here. So I can do it. With I we can use can here. You can do it. So there is no change in modal auxiliary. इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर फर्स्ट पर्सन यूज हुआ तो भी कैन, सेकेंड पर्सन यूज किया तो भी कैन, और थर्ड पर्सन यूज किया तो भी कैन। ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी कैन। ये प्लूरल सेंस है, यहाँ पे सिंगुलर है, ये प्लूरल लगा लो, और आई इज ए सिंगुलर। सो अगर कोई नंबर हो या फिर पर्सन, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कैन डू, कैन डू, कैन डू, ये सेम रहा हमारा। तो इसलिए हम कह सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी पर सब्जेक्ट के नंबर, नंबर मीन्स 1 2 3, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु प्राइमरी ऑक्सिलरी पर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? एम गोइंग। तो आई के साथ हमने एम यूज किया, ही के साथ हमने इज यूज किया, और दे के साथ हमने आर यूज किया। तो इस पर प्रभाव पड़ा इसके सब्जेक्ट से, लेकिन इसके सब्जेक्ट से मॉडल ऑक्सिलरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द मॉडल ऑक्सिलरी। आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग। Now this second point is a modal auxiliary never stands alone. सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है वो कभी भी अकेली नहीं आती है, इसके साथ मेन वर्ब का आना जरूरी होता है। इट ऑलवेज कम्स विद मेन वर्ब, यानी कि ये तो हमारी ऑक्सिलरी ही रहती है, ये हेल्पिंग वर्ब ही बनकर रहती है, ये कभी भी मेन वर्ब बनकर नहीं आती है। बट ए प्राइमरी ऑक्सिलरी समटाइम्स मे कम अलोन एंड डज द वर्क ऑफ द मेन वर्ब। लेकिन जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो कभी कभी, समटाइम्स, मे कम अलोन, कभी कभी वो अकेली आ सकती है, और अकेली आएगी और वो मेन वर्ब का भी काम करती है उस वक्त, एंड इट डज द वर्क ऑफ ए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का भी वो काम करती है। अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी आप देखोगे तो क्या है? ही कैन गो टू मार्केट। अब देखो, ही इज द सब्जेक्ट, can is the model auxiliary, is used as the helping verb here. Go is the first form of the verb. To is the preposition here and market is the object. तो यहाँ पर जो can है ये अकेला कभी भी नहीं आएगा, ये हमेशा मेन verb के साथ आएगा। He can go to market. You can sleep now. You can is the modal auxiliary, sleep is the first form of the verb. Now you must write in a good handwriting. Now you is the subject here, must is the modal auxiliary, write is the first form. तो यहाँ पर क्या मेन फोकस क्या है
कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब बन के आई हैं, इनके साथ मेन वर्ब हमेशा मिलेगी, मेन वर्ब, और वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और कोई भी फॉर्म हमारे आगे नहीं मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी, हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही मिलती है, ना कोई आईएनजी फॉर्म मिलेगी, ना कोई ईडी फॉर्म मिलेगी। नाउ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी, आई हैव ए कार। नाउ यू कैन सी इन दिस सेंटेंस आई हैव ए कार, I is the subject here, a car is the object here. So where is the verb here? Verb is have. Have is helping verb, but here it is used as the main verb. I have a car. What is the definition of a sentence? A sentence have a subject and a predicate of its own. तो subject तो हमारा I आ गया, इसमें कहते हैं सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट देयर शुड बी ए नाउन और प्रोनाउन, एंड इन प्रेडिकेट पार्ट देयर शुड बी वर्ब. विदाउट वर्ब वी कैन नॉट complete the sentence. So I is the subject here, a car is the object, and have is the helping verb which is used as the main verb here. He is a soldier in the army. He is a soldier. He is the subject here. A soldier is the object here. So is the helping verb used as main verb here. So primary auxiliary can be used as main verbs sometimes, not always, sometimes. And in modal auxiliary we need main verb with it. It is very compulsory. Now the third point, only the first form of the verb is used after a modal auxiliary. I had told in the second point also this thing, that only the first form of the verb is used after a modal auxiliary, but with primary auxiliary the form of the verb is changed according to the sense. लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी में जब हम the form of the verb is changed according to sense, तो according to sense ही हम इसको यूज करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है मॉडल के तुरंत बाद. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, if there is be or have after a model auxiliary, अगर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद be है, या तो be हो या फिर have हो, it is followed by present participle, first form of the verb plus ing, and past participle, third form of the verb respectively. अगर be है, बी के मॉडल ऑक्सिलरी है और बी है, तो उसके तुरंत बाद हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और अगर मॉडल हो, हैव हो, तो उसके साथ हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग. शी इज द सब्जेक्ट हियर, विल इज द मॉडल ऑक्सिलरी. आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वी सी बी. So here will come the first form of the verb plus ing, a song. So that is singing a song. She may be sobbing. तो यहाँ पर आपका कई बार क्या होता है, ये यहाँ पे फिलअप आता है, डैश मिलेगा, तो आपको यहाँ पर ing फॉर्म लगानी पड़ेगी, और ये लगभग ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं. अब शी मस्ट बी, यहाँ पे डैश होगा, आगे आपको ब्रैकेट में डू दे दिया जाता है, तो शी मस्ट बी डूइंग हर होमवर्क. अगर मॉडल ऑक्सिलरी हो, बी हो, तो आईएनजी फॉर्म आएगी. इस पे आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से इस पे लगाना है आपको. देन यू मे हैव सीन द ताजमहल. अगर मॉडल ऑक्सिलरी हो
और हैव हो तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी। आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो यहाँ पे यू में हैव और यहाँ पर डैश दे देंगे और सी दे देंगे। तो आपको ये देखना है, अरे ये तो मॉडल ऑक्सिलरी है विद हैव है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी। द ताजमहल, शी कुड हैव कॉट द थीफ। अब देखो शी सब्जेक्ट हो गया, कुड इज द मॉडल ऑक्सिलरी, हैव आ गया, तो यहाँ पर कैच लिख के ब्रैकेट में और यहाँ पे डैश दे देते हैं वो लोग। तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज कॉट द थीफ। शी कुड हैव कॉट द थीफ। दे शुड हैव वर्कड हार्ड, सेम कंडीशन, दे आ गया, दे मॉडल ऑक्सिलरी शुड, हैव आ गया, तो हैव के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे और हार्ड, वर्कड हार्ड। So this is the topic of auxiliaries. I think you must have understood. Thank you and have a nice day.